जी नायाब के बाद ले जाएं ऊपर ले जाएं और ले जाएं और ले जाएं और ले जाएं रोके जी। एन आइडियल हिस्टोरियन इज द कंप्लीट एंड ट्रू पिक्चर ऑफ अ डेस्टिनेशन। नहीं, आइडियल हिस्टोरियन नहीं, आइडियल हिस्टोरियन पोर्ट्रेज, नूरुल हुदा, पोर्ट्रेज अ कंप्लीट एंड ट्रू पिक्चर ऑफ अ designation. An exemplary historian provides us with a truthful and complete picture of a period of time. He does not give a falsified account and does not invent anything. जी अमीर, मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको आप लिख लें neither or not के साथ। neither does he lies nor does he fabricates, neither or not compound conjunction लगा लें, ठीक हो गया जी। Usman, a real historian depicts the original picture of his era and doesn't present self-generated idea or biasness in his work, ठीक है। Agha Saab, an exemplary historian paints a true and complete picture of an era. He narrates. No, he narrates. No. गलत कर गए आगा साहब। He neither lies nor fabricates. ऐसे कर ले, ठीक है। और promotes biases, ठीक है, ये भी उसके साथ आ जाएगा। An ideal historian gives us the true and complete picture of an era. Neither he fabricates, lies, nor invent anything. Well, that's very fine. Not invents. Zahida, invent के साथ भी s लगेगा बेटा। He never writes. Nurul Huda writes any lie, nor he invents. He sheet के साथ s और es के addition, ठीक है। A good historian presents the complete picture of an era with no false or self-made information. Shabash, Sara Suleiman, very good. Zunaira Batul तक ले आए जी, ऊपर ले जाएं। फहद ले जाओ। जुनैरा बतूल यहां पे रखो। An exemplary historian portrays complete and realistic picture of an era. He narrates neither include his personal interventions nor biasness. नहीं, गलत हो गया सेकंड वाला, ग्रामेटिकली गलत है, इसको मॉडिफाई करें जुनैरा। पहला आपका बिल्कुल ठीक है सेंटेंस जी। An exemplary historian presents us the true and complete picture of an era. He does not write false nor discovers new, ठीक है। Hassan, an ideal historian, draws a true picture of an era. He does not lie or fabricates. fabricate does लगा दी ना आपने हसन, और fabric, ठीक है जी। Ghina Irfan, an exceptionally good historian gives us the whole and true picture of an epoch. It neither comes up with things nor lies, ठीक है। An exemplary historian records history accordingly and without personal prejudice and bias, ठीक है जी। कहना मैं पढ़ चुका हूं आपका। नूरुल हुदा, ओके। गिना इरफान, ओके, मैं नीचे पढ़ने लगा हूं। An exemplary historian, a good historian gives us the whole and true picture of an epoch. He neither comes up with things nor lies, जी। ठीक है गिना, आपने ऊपर भी पेस्ट किया है, ऊपर ले जाएं जी। सबा खान का यहां पे रखिएगा। An exemplary historian, better to write ideal historian. Exemplary ना लिखे, ideal लिखे। An ideal historian portrays clear picture of the time. He neither infiltrates nor fabricates. Good. Sabah Khan, very good. Ji Shajia, an ideal historian portrays real and complete image of an era. He neither writes erroneous nor fabricates. बिल्कुल ठीक है Khattak, sir. Since I cannot refrain from long sentences and complicated use of words, so I try my best to be very simple and precise using really easy words. Is this okay? It must be okay. Khattak, इसको easy ही करना है और जितना precise कर सके translation को उतना ही अच्छा है। शाबाश। Anam, an ideal historian picturizes Aiganam, a true and absolute image of an era for us. He doesn't speak with a forked tongue nor invents anything. Shabash. Anam, beautiful. An exemplary historian paints a true and complete picture of an event. He does not write lies. He does not invent anything. देखिए तलहा, लास्ट के दोनों फिक्रों को इकट्ठा करें। Neither does he lies nor does he invent anything. Neither does he lie nor does he invent anything. ऐसे करेंगे तलहा। A real historian provides accurate picture. He neither tells दाऊद tells a lie nor invents. दोनों के साथ ऐसे लगाइए दाऊद, ठीक है। ऊपर ले जाएं जी फर्रुख से, जल्दी फर्रुख।
An ideal historian provides us with a true and complete picture of the era. He never misleads. Shabash. Gives us true and complete picture of time. He neither lies nor discovers something new. In history, he is not biased towards anything. Anyone कर ले खटक, anyone. ठीक है खटक, ये translation ठीक है, कोई problem नहीं है, ठीक है? An ideal historian gives us an accurate and complete version of events without telling any lies. Shabash Mustafa. Ji, the philosopher is philosopher nahi, Saira, historian. There is a marked difference between philosopher and historian. ठीक है? Historian लिखना है Saira Adlavar. The historian is give to complete picture, neither to lie. नहीं 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 नहीं, बहुत गलतियां हैं, ये ग्रामेटिकली गलत है. सायरा आपका सेंटेंस इसे दोबारा फैब्रिकेट करें. Kindly ask all students to paste their translations to everyone, not privately. Can't follow what you're reading. Okay. आपने चैट प्राइवेट कर दी, पब्लिक कर दी है ना? बाकी लोग भी अपनी चैट को पब्लिक कर दें जी, प्लीज प्राइवेट न रखें. आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, एक दूसरे के लिए, ठीक है? अहमद शाह की रिक्वेस्ट है, ऑनर करें, सब लोग इसको पब्लिक कर दें. An exemplary historian provides a complete and true picture of an era. Neither does he lies. Lies नहीं आएगा फिर अहमद अली. Lie. Does आ जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म s कट जाता है. Lie. Nor does he invent something. Lie से s कट कर दीजिए. अहमद शाह आप सुनते रहें अगर नजर नहीं आ रहा तो. An exemplary historian provides a complete and true picture of an era. Neither does he lie nor does he invent. अहमद अली, ठीक हो गया? 2 दफा पेस्ट कर दिया आपने. Okay, an ideal historian paints an honest and complete picture of an era. He neither lies nor fabricates details. He is objective in his work and does not let any bias affect it. Well done, Dua. Beautiful rhythm of your translation. G corrected. An ideal historian paints a true and complete picture of an era. He does not lie, invent or promote biases. Shabash. Ab theek hai. Ab theek hai, Agha sahab. An ideal historian portrays clear picture of the time. He neither infiltrates nor fabricates. दो दफा ना काइंडली पेस्ट करें, मैं पढ़ चुका हूं ये सवाल. वेल डन, शाबाश. आगे बोल रहा हूं जी, ये आपने कर दिया. उसकी पसंद और नापसंद उसके काम पर असर नहीं डालती. कभी कभी दो अच्छे मुहर्रिख भी एक दूसरे से इत्तफाक नहीं करते. वो एक ही मंजर देखते हैं और मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हैं. ऐसा क्यों है? यहां तक ट्रांसलेशन पेस्ट कीजिए. शाबाश शाबाश एवरीबॉडी, एवरीवन. G. His likes and dislikes not influence his work. Sometimes two good historians may not hold favorable views of each other. They may observe the same event and give different accounts. Why does this happen? ठीक है तलहा. Ahmad Shah, he shows no biases for or against anyone. He likes, his likes and dislikes don't affect his work. Sometimes two good historians might disagree. They see the same scene and describe it differently. बिल्कुल ठीक है. Ahmad Shah and Talha, देखिए, likes and dislikes लफ्ज़ी का तर्जुमा हो जाता है. सब लोग, आप इसको preferences लिख ले. His preferences या priorities don't affect his work. ठीक है? Preferences are priorities. कोई जरूरी नहीं हमने लफ्ज़ी तर्जुमा करना है. Ahmad Shah and Talha Shahib, ठीक है? अच्छी ट्रांसलेशन है आपकी. Maria, sir, back on this. An exemplary historian records history accurately and without personal prejudice and bias. Beautiful translation, very economized, Maria. I think I have given comments over that. Very fine, well done. आपने बहुत अच्छे तरीके से squeeze किया है इसे. You have given the quintessence of this. My compliments, Maria Risham. Agha Farhan. Even his preferences do not pollute his work. Sometimes, however, the work of any two great historians clash. Good, good. Agha sahab, आपकी translation बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी different आ रही है. Very fine. Shabash. He does not have a bias in favor of or against anyone and his likings and dislikings. Does नहीं आएगा, फिर do आएगा. Amir Hamza, do not influence his history. Sometimes even competent historians diverge and disagree with each other to see the same picture yet tell different stories. Why is that so? Very fine. बिल्कुल ठीक है जी, कर दिया off remove. नायाब अजहर, he has a neutral judgment without any judgment. रोकिएगा. नायाब, he has a neutral judgment without any judgment. No, weak हो गया sentence. खत्म करें एक judgment को. However, it happens that a contradiction. किधर गया यार? नीचे करो, ऊपर चला गया. हाँ, यहाँ रखो. नहीं,
हाँ नायाब का यहाँ पे रखो, अब यहीं रखना. He has a neutral judgment without any judgment. However, it happens that a contradiction exists between the opinions of the two famous historians. May exist लिखना है. नया बजट may exist. और ऊपर वाला एक जजमेंट खत्म करें. शाबाश सारा. Is objective and unbiased. Good Sarah. However, sometimes two historians may disagree and present different outlooks regarding the same situation. Beautiful translation, Sarah Suleiman. Disagree भी लिख सकते हैं, dissent भी लिख सकते हैं आप लोग. DISSENT, dissent each other. Zahida is not prejudiced and biased. There is a clash of perceptions between two good historians at times. They tell different stories about the same event. Why is this so? Shabash, Zahida. Maria, his accounts are not influenced by personal preferences. Yet two good historians might not see eye to eye. Yes. अगली लाइन भी ऐड कर देनी थी मारिया. बिल्कुल ठीक है. दुआ. Is objective in his work and does not let any bias affect it. Sometimes analysis of two historians are not alike either. Good. Dua, very fine. He neither possesses prejudice in favor or against, not puts his liking and disliking in his work. Shabash Daud. Nurul Huda, ऊपर ले जाएं जी. He has no Nurul Huda की press. यहाँ पे रखिएगा. यहाँ. He has no sectionalism in favor of or against anyone. His favoritism does not affect his work. Sometimes two ideal historians can be agreed, can't be agreed. Nurul Huda, agreed, D लगाइए, with each other's point. Can't be agreed. हाँ, यहाँ on ही आएगा, on each other's point. ठीक है. They only either see or hear one side of story. Why is this? Shabash. Anand. अच्छा है. Nurul Huda अच्छा है. He neither prejudices nor goes लगाइए. Anand, आगे भी yes लगाइए. Goes against anyone. His affections and repulsions do not. Anand, आपका ये does or do का इस्तेमाल weak है. Affections and repulsions do not have impact on his work. Sometimes two ideal historians do not, again, does not नहीं. Does use होता है singular के लिए. Plural के लिए do use होता है ना. Do not go along with one another. They watch same scenario but tell distinctive stories. Why it happens? नहीं. Why does it happen? Why does it happen? Anam, आपका present indefinite tense doesn't do में weak है. थोड़ा सा इसकी practice करनी है आपने. Gina. It doesn't show partiality towards anyone. His own likes and dislikes have nothing to do with his work. At times, two good historians may have antithetical views. Beautiful use of words. Shabash. They see a same exact scene but might perceive it differently. Question arises, why is that so? Shabash Kana. Sonera, his personal opinion doesn't influence his work. At times, two good historians might contradict each other, having different views about the same thing. Why is that? ठीक है. Shabash Sonera. Good rhythm. Manur. He is a biased person. No, Manur, not at all. Unbiased person. Unbiased. ED भी लगाइए. His work not affected by his work. No, Manur. Grammar is weak. Sometimes two historians are contradictory to one another, to each other. One another नहीं, to each other. ऊपर आपकी grammar weak है. He is an unbiased person. His work does not affect. नहीं, आप लिखेंगे Manur Sajid. His preferences do not affect his work. His preferences do not affect his work. ठीक हो गया जी. Next. मोहम्मद रोकिए यार, नीचे करो. हाँ. He is unbiased. His personal preferences don't affect his work. जैसे जवाद ने लिखा है, देखिए. Sometimes two good historians contradict with each other. They see same but explain different. Why is it this? बिल्कुल ठीक है खटक. His likes and dislikes don't. खटक don't, not doesn't. Do not influence his job. Even the good historians are sometimes not found on the same page about most of the events. Why is it so? Why is it so? यहाँ question mark दीजिए और आगे नया फिक्रा start करें खटक. Actually, they hold different perspectives on the same event. Why is it so that? अच्छा ठीक है आपका फिक्रा. Shabash. Truth is that a historian is a human, unlike machine. Not two humans are same ever. Shabash. बहुत अच्छी आपने पूरी translation almost कर दी एक फिक्रा छोड़ के. बहुत अच्छी. Is impartial and doesn't hold his
hostility against anyone. Shabash Sabakhan. Shajia, his mindset never bothers his work. S lagaiye, bothers Shajia, bothers his work. Sometimes too, great historians reflect differently. Shabash, they witness same incident but tell. यहाँ पे S काटिए dissimilar stories. Why is that so? Shabash Shajia, Uswa. At times two historians don't agree on presenting same stories. Why is it so? Shabash Uswa. Farooq. He never discovers, he never gives opinions in favor of opposed to anyone. नहीं, यहाँ आप कर रहे हैं Farooq. He never gives opinions in favor or against anyone. Farooq Zeib, or against anyone. Correction कीजिए. His work never suffers from his from his likes and dislikes. Sometimes two historians are poles apart. Shabash, ठीक है Farooq. ऊपर ले जाएं जी मुस्तफा इमरान. जल्दी जल्दी ले जाएं यहाँ पे रखिए. Sometimes two qualified historians are not on the same page. They give different versions of the same occurrence. Why is that so? Mustafa, well done. He is always against favoritism, and it's not, and it doesn't affect his profession. Sometimes historians can't be on same page. They drive to different stories from same scenario. Why is it this? Hassan, well done. Sabah, he is impartial and does not hold hostility against anyone. His subjectivity does not overlap his work. At times, historians do not share the same page. Beautiful, Sabah Khan. Daud, they observe same scene and he spake with his stories. But why is this happen? No, why does this happen? Daud, why does this happen? Does laga lijiye. Shabash. Ji Farkhanda. They don't hold anything against anyone's right. Their personal likes and dislikes don't. Farkhanda, dislikes do not does, do not contradict in their work. Sometimes two good historians look at the same thing with different perspectives. बिल्कुल ठीक है. ठीक हो गया जी, आपने लिख दिया नीचे do not. शाबाश फरखंदा, बिल्कुल ठीक है. I got disconnected. जी फरूक, ठीक था आपका, मैं पढ़ लिया मैंने. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. Should we use verbosity in translation or keep it simple? You can use verbosity, Ahmad Shah, but clarity must be intact. Clarity must be absolutely intact. Okay, sir. Was mine fine? I got stuck. It was good, Mustafa. It was good. But sir, you were suggesting, I think so. What I was suggesting, Farooq? No, Farooq. Translation में आपके पास margin है, वो प्रेसी की बात मैंने की हुई है, ठीक है? Translation में आप use कर सकते हैं, लेकिन बेला वजह नहीं. ख्याल करना है कि उसकी coherence ना जाए और उसकी clarity of thought डिस्मार ना हो. बाकी हर चीज ठीक होगी. Last में paste कीजिए जी. लास्ट हमारा इकट्ठा पेस्ट कर दें. हकीकत यह है कि मौरख इंसान है, मशीनें नहीं. इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, वो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार नहीं हो सकते. यही वजह है कि मौरख की शख्सियत उसकी तारीख से गैर हासिल नहीं होती. ठीक है, अब यहाँ रखना है जी नायाब अजर पे. रखो जरा फहद, यहाँ रोक देना. The viewpoints distinguish as they have different mindsets. So human is valuable and now यहाँ रखो. And a piece of work is not eternal. The composition carries an influence of the personalities. Nayab, salute to you, beta. Pause over this translation. Amateur. People are different from one another. They perceive things differently. They can't be totally unbiased. That's the reason a historian's personality is reflected in his work. Shabash. Bilkul theek hai, amateur. Zahida. The fact is historians are human, not machines. Robot bhi likh sakte hain. Human, not machines. Zahida, humans ke baad comma lagaiye. Humans, comma, not machines. Human beings are not alike and have different perspectives. They can't be unbiased completely. That is why the personality of a historian is visible in his history. Shabash. In fact, historians are human beings, not machines. They can't be. आप भी अनम, आप भी beings के बाद human beings के बाद comma लगाइए. Not machines. They cannot be absolutely impartial. Anam, pen mistake है, आपकी typing mistake है. Absolutely impartial. Due to this reason, personality of a historian doesn't be. No, is not absent. अगर doesn't लिखना है तो doesn't get absent. Anand does not get absent from his work. Okay, Sarah. This is because historians are also humans and can view the same situation from varied perspectives. It's impossible for them to be completely objective during this history written by historians. History के बाद comma लगाइए. Sarah, history के बाद comma लगाएं. Written by historians is a reflection of his personality. शाबाश, ठीक है. ऊपर ले जाएं जी फहद,
ले जाओ जी, सारा के बाद आगा, ठीक है, याद रखो. Why is this so? Well, they're humans, of course, and not too alike. They use different lenses to observe, varying their perspectives. They can't be completely objective. Therefore, one can separate the history from his historian from his history. Shabash, Agafran, good rhythm. Dua. This is because neither can two humans think alike, nor can they completely eliminate subjectivity from their perspective. Hence, a historian's work is a reflection of his personality. Well done, Duaiman. Maria, they record the same account telling a different story. That's why a historian's personal history can be separated from his recorded history. Shabash, Maria Risham. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. That's why a historian cannot be impersonal, totally impersonal. ये भी आप लिख सकते हैं. Historian cannot be totally impersonal. ठीक है? Well, Mohammed Amir Hamzah, the truth is that historians are humans, not machines. Individual differences exist among human beings and have different perspectives about the same things. However, it is not possible for them to be completely neutral. This is why a historian's account is never absent from reflecting this personality. Okay, Amir Hamzah, well done. Rena, ऊपर ले जाओ जी. The reality is that historians are human beings and not machines. Humans vary from one another, and so do their perception. They cannot be totally unbiased due to this very fact. The personality of a historian is the product of his experience. Well done, Gana Irfan. Shabash. Shajiya pe le jaएं जी. और ले जाएं. यहाँ रखिए. The truth is, historians are humans, not humanized. Humans are discrete. They see things from different perspectives. They could not be impartial all the time. That's why a historian's personality is chronicle. Shabash. Shajiya, well done. अब आप आ गए हैं अपने एक्सप्रेशन पे जो लिखते होते हैं. आपको मैंने रोके रखा है बड़े दिन, ठीक है. अभी आपने अपना एक्सप्रेशन दिया. तलहा, the truth is that historians are human and not machines. Humans are different from one another. Talha, one another, not each other. They look at things from different perspectives. They can't be completely unbiased. This is exactly why the personality of a historian is not absent from his legacy. बिल्कुल ठीक है तलहा. शाबाश. उस्मान असलम, अच्छी ट्रांसलेशन कर रहे हैं आप लोग. There are possibilities. Historians might be differing one another, Usman, one another. They are humans but not machines and are different from one another again. दोनों जगह one another आना है. Usman Aslam. Everyone observes. यहाँ पे ऐसे लगाइए Usman. Grammar की mistakes आ रही हैं. Everyone observes things differently and नहीं, अब यहाँ दे नहीं आएगा. And is unbiased करें. Everyone observes things differently and is unbiased. ठीक करें उस्मान असलम इस फिक्रे को. This is why personality of a historian depicts. S लगाइए यहाँ पे. उस्मान, क्या बात है बेटा, present indefinite tense बहुत weak आ रहा है. Why personality of a historian depicts from his history? No, यहाँ आएगा is depicted from his history, from his work. Is depicted from his work. ठीक कीजिए, 2-3 गलतियां हैं उस्मान. Content ठीक है आपका. Nurul Huda, the reality is that they are humans, not machines. Humans are different from each other, know one another. मैंने बोर्ड पे भी बताया था each other और one another का difference. They see things, not saw. Nurul Huda, they see things with different angles. They can't be impartial completely. That is the reason the historian cannot be absent from history. Shabash, Shabash, Nurul Huda. Zunaira Batul, ऊपर ले जाएं जी. फहद, जुनैरा बतूल पे ले जाएं. रुकिए. Because they are humans, not robotic machines. All humans are different. They have different point of view about things. They can't be completely unbiased about it. This is why historians' personality is reflected in a historical perspective. Shabash Zunaira. Jawad. Actually, historians are humans, not machines. Humans के बाद Jawad comma लगा लीजिए, not machines. Humans are different from one another. They see things at different angles. They can't be completely unbiased. Therefore, the personality of a historian is not absent from his history. Shabash Jawad. Hattak. They look at objects and events from different perspectives. A historian can be completely unprejudiced towards history. Towards history लगाने की जरूरत ही नहीं है. Unprejudiced पे full stop लगा दें Hattak. And this be the only reason why a historian's personality can be exempted from his narrative totally. हाँ, वाकई देखिए ये फिक्रा आपका बहुत लंबा है. आप लिख सकते हैं. That is why a historian cannot be absolutely impersonal, totally impersonal. ऐसे कर ले. Doubt.
In reality, humans are machines, therefore, not machines, therefore, they're poles apart from and observe with different angles. They cannot put themselves away from the work, and thus the work is the reflection of the personality. Well done, Daud. जी रोकिएगा सर, मेरी तो ग्रामर की बहुत मिस्टेक है. कोई बात नहीं, घबराना नहीं है सारा, घबराना नहीं है. इस टेंस को आपकी एक ही टेंस की ज्यादा मिस्टेक्स आई हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. इसको जरा देखिए, ठीक है. प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज बुक 1. A practical English grammar exercise book 1. सारा दिलावर गूगल करके इसको डाउनलोड कर लें. प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज बुक 1. इसको गूगल करके डाउनलोड करें, आपका मसला हल हो जाएगा. So you said good rhythm. Please guide as to how improve even further. आगा फरहान, फिक्रों में continuity और rhythm, एक पूरे पैराग्राफ का इंप्रेशन आना चाहिए, सिंगल चंकी सेंटेंसेस का नहीं. That creates rhythm in the paragraph. Got the idea? In fact, they are humans, not machines. Humans vary from one another. They analyze things in different ways. They can't be totally impartial. That's why history is always alive in historian is always alive in history. Manur Sajid, shabash, bilkul theek hai. G, sir, can't I write historians are not robots instead of writing a long sentence mentioning that historians are humans, not machines? You can write, Zaida. Why not? Why not? जब आप लिखते हैं not robots, इसका मतलब ही है कि वो human beings हैं. Sir, I got it. Thank you. That's fine, Nurul Huda. People are different from one another, Farkhanda beta, one another, and unique in their own way. They have a tendency to look at things from different aspects, however, they can't be totally unbiased. This is the reason their personality is reflected in their work. Shalash, why is this so? The truth is, they're mere human beings, not robots, and human beings के बाद comma लगाइए Hassan, and can be different in nature. They observe things with different perspectives and can't be completely impartial. That's why his personality. अब यहाँ there ही लगाएंगे Hassan, his नहीं आएगा. ऊपर आप plural pronoun use करते आ रहे हैं. That's why their personality reflects their experience, is reflected करें, is reflected through their experiences, is reflected through their history कर लें, experience ना लिखें यहाँ पे. Hassan is reflected through their history. Mustafa, the fact of the matter is that historians are humans. comma लगाइए Mustafa, humans के बाद are not cyborgs. Cyborgs बड़ा different से word हो जाएगा. बहरहाल लिख लें. They look at things through different perspectives and are not completely impartial. This is the reason a student's personality can be separated from his past. Shabash Mustafa Imran. Okay. Ji Shajia bahut acha hai. Oh yes, one another, because more than two people. Yes, Farkhanda. Yes. Well, this happens because historians are human beings, not machines. No human shares. Sabah, yahan shares aayega. No human shares same approach, and they cannot be neutral. And he cannot be neutral. No human refers to singular noun, and he cannot be neutral. A historian cannot help subjection of his own thoughts. Shabash, theek hai. Subjecting his own thoughts. Bilkul theek hai. Any other mistake? No, Farkhanda. जी हसन, बहुत ख्याल रखना है, अगर आपका प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है थ्रू आउट प्लूरल आना चाहिए. कम से कम एक फिक्रे में ये डिसएग्रीमेंट नहीं आना चाहिए हसन कि आप स्टार्ट उसे प्लूरल से करें और बाद में आप सिंगुलर ले आए. गॉट द आइडिया? शाबाश. दैट्स व्हाई देयर पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टेड बाय हिस्ट्री. बिल्कुल ठीक है. थ्रू देयर हिस्ट्री कर ले हसन, ज्यादा बेहतर हो जाएगा. इज रिफ्लेक्टेड थ्रू देयर हिस्ट्री. शाबाश शाबाश. आई एम प्लीज्ड. मेजॉरिटी की ट्रांसलेशन अच्छी है. जिनकी कोई थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आई हैं, घबराने की बात नहीं है. ट्रांसलेशन का याद रखिएगा, एक सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये आपकी टेंसेस और ग्रामर ठीक कर देती है. टाइम अलॉटेड फॉर ट्रांसलेशन प्लस विल बी राइटिंग द उर्दू पैसेज इन एग्जाम. नो, नॉट एट ऑल नायाब. उर्दू पैसेज आपको लिखा लिखाया मिलेगा. टाइम एलोकेटेड फॉर ट्रांसलेशन 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम. 10 मिनट में हो जाती है वैसे, लेकिन यू मस्ट टेक 15 to 20 मिनट्स. दैट इज एनफ टाइम. नायाब, यू कैन डू इट. माय कॉम्प्लीमेंट्स, आपने अच्छी ट्रांसलेशन की है. एक पैसेज और देना चाह रहा हूं. बोर तो नहीं हो जाएंगे ना बेटा जान? टेक्स्ट नंबर 14 इन्हें सेंड करना है. फहद,
नंबर 14 हॉरिजॉन्टली से सेंड करना जरा, तो मुझे बताना। आ रहा हूं जी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। पेपर कौन सा था सर? इज द एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और कैन वी बी अ बिट क्रिएटिव? यू नीड टू बी क्रिएटिव अहमद शाह। टाइम एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू he hates word by word translation. Examiner hates word by word translation. ठीक है, आपने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की है ऑलरेडी अहमद शाह, लेकिन वर्ड बाय वर्ड नहीं करनी। जैसे वर्ड्स बदला करें, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रायोरिटीज लिख ले, प्रेफरेंसेस लिख लें कि हिस्टोरियन अपनी हिस्ट्री से गायब नहीं होता, कैनॉट बी इम्पर्सनल। ठीक है, he cannot extinct his personality, कुछ डिफरेंट से खूबसूरत वर्ड्स दिया करें। ठीक है, he cannot extinct his personality, he cannot divorce his personality from his history. Escape to, definitely फरखंदा, well done। तो वैरायटी ऑफ वर्ड्स दीजिए। ट्रांसलेशन में ये नहीं होना चाहिए कि एक ही वर्ड एट टाइम एंड अगेन यूज करें। वैरायटी ऑफ वर्ड्स, बी सिंपल, क्रिएटिव, इट इज प्रेफरेबल। लेकिन अगर किसी का नेचुरली स्टाइल थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उसकी क्लैरिटी अफेक्ट नहीं हो रही, तो आप दे सकते हैं। यस, द एग्जामिनर वांट्स वेरिएशंस इन राइटिंग। गॉट द आइडिया? जैसे शजिया, उनके ज़हन में प्रेसी रह गई थी, उन्होंने इसको डिलिबरेटली बड़ा मुश्किल के साथ सिंप्लीफाई किया, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दे दिया। जब मैंने कहा कि आप दे सकते हैं, वर्बोसिटी यूज कर सकते हैं, तो शी वॉज इन हर कंफर्टेबल जोन के वो उस तरह से दें। और एंड पे भी, क्योंकि उसमें क्लैरिटी एग्जिबिटेड थी। क्लैरिटी मारनी होनी चाहिए, कोहेरेंस मारनी होनी चाहिए। यानी ये तासुर ना है कि आप एक अलग-अलग सिंगल सेंटेंस कर रहे हैं और उसका ऊपर नीचे वाले सेंटेंसेस से कोई तल्लुक नहीं। एक पैराग्राफ का इंप्रेशन आना जरूरी है। गॉट द आइडिया? बेटा ये देना, मैंने पढ़ के भी सुनाना। कर दिया? ये एक पैसेज आप तक और आ रहा है, मैं छोटा सा पैसेज है, मैं पढ़ के भी सुना दूं। मैं डिलिबरेटली ऐसे पैसेजेस दे रहा हूं जो पढ़ने में बहुत इजी हैं, करने में भी आपको इजी लगेंगी, लेकिन देखना यही है कि आप इसको बामहावरा तौर पे कैसे हैंडल करते हैं। ये मैं पढ़ दूं ताकि कोई मुश्किल ना आए आपको, आप तक पहुंच जाएगा। बेटा चला गया इनके पास? भेज दिया है? ओके, हैव यू गॉट दिस टेक्स्ट पैसेज एक्सरसाइज 14? प्लीज एक्नॉलेज, समवन ऑफ यू प्लीज एक्नॉलेज। गॉट इट? ओके, ये ऊपर की लाइन थोड़ी सी डिम सी है, मैं पढ़ देता हूं। सकाफत के मानी है इंसानी जहन की तरक्की और बेहतरी। सकाफत कहते हैं कल्चर को, नॉट सिविलाइजेशन, कल्चर। पेस्ट कर दीजिए मरियम अवान के लिए प्लीज, उन तक नहीं पहुंचा। सकाफत के मानी है इंसानी जहन की तरक्की और बेहतरी। इस्लामी सकाफत दुनिया की दूसरी सकाफतों से मुख्तलिफ है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस्लामी सकाफत दुनिया की दूसरी सकाफतों से मुख्तलिफ है। इसका मकसद सिर्फ एक फर्द या कौम की बेहतरी नहीं, बल्कि सारी नस्ल इंसानी की फलाह है। इस्लामी सकाफत के रहनुमा पैगंबर इस्लाम है, इसका दस्तूर कुरान है और इसकी मंजिल खुदा है। इस्लाम इंसानी कोशिश के मकासद का तायुन करता है। तायुन करना, डिटरमिन्स द, ठीक है, और इन मकासद के हसूल के लिए मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करता है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फ्राहम करता है, कोड ऑफ लाइफ, जो हयात इंसानी के सभी पहलुओं का अहाता करता है। पहलू, एस्पेक्ट्स, और अहाता करना, कवर्स। गॉट द आइडिया? मैंने मुश्किल आपकी हल कर दी है, बीच में बता दिया है। तो अब देखना यह है कि आप इसको किस तरह एक बड़ी कॉन्टिन्यूअल, कोहेरेंट एंड क्लियर ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। गॉट द आइडिया? दिखने में सिंपल है, पैराडॉक्सिकल है, अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ आ रहा हूं, आपको दिए थे, गाइड कर दीजिए। पेपर हमारा 2003 था, आई थिंक। somebody must acknowledge 2003। ओके जी, बी अलर्ट, अपने सेंटेंसेस निकाल लीजिए, मैं बोलने लगा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपने उनको टिक करना है या उनको करेक्ट करना है। इस दौरान कोई चीज पेस्ट नहीं करनी, मेरी तवज्जो उधर चली जाती है, ठीक है। पहले आपने टिक करने हैं, करेक्ट करने हैं, और ये करने के बाद आपने फीडबैक देना है।
फीडबैक देने के बाद आपने पूछना है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ठीक हो गया जी। जी फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर हाउस इजंट इट, आस्क्ड जेमी। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें शामिल हों। दिस इज योर हाउस इजंट इट, कल कॉलेज गए थे, नहीं गए, इनको हम कहते हैं टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस को नेगेटिव में करना बेहतर होता है। सो दिस इज योर हाउस इजंट इट, आस्क्ड जेमी। ये क्या हो जाएगा? जेमी आस्क्ड if that was not my house. Jamie asked if that was not my house. ठीक है, if that was my house भी कर सकते हैं आप, दोनों ही ठीक है। ये कि नेगेटिव में करना ज्यादा बेहतर होता है। Jamie asked if that was not my house. Next, where do you want to be dropped? Said the taxi driver. The taxi driver asked where I wanted to be dropped. Where I wanted to be dropped. ठीक है, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। The taxi driver asked where I wanted to be dropped. Next, call the first witness, said the judge. This is imperative. Imperative. Call the first witness. Verb से start हो रहा है और ये order है। क्या हो जाएगा? Judge ordered to call the first witness. The judge ordered to call the first witness. Next sentence. Don't blame him for the accident, the boy's mother said. The boy's mother forbade her son to be blamed for the accident. एक version ये है, the boy's mother forbade her son to be blamed for the accident. दूसरी है, the boy's mother asked not to blame her son for the accident. Asked not to blame her son for the accident. ये जरा easy है, imperative है ना ये भी. Asked not to blame her son for the accident. Got the idea? Next, he said, I banged on Cliff's door, but he didn't answer. दो क्लासेस है इस सेंटेंस में, दोनों की दोनों इंडेफिनेट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे? He told, said भी लगा सकते हैं आप सिंपली। He said that he had banged on Cliff's door, but he had not answered. यहां आप दोबारा he की जगह Cliff's लगा सकते हैं दोबारा। He said that he had banged on Cliff's door, but he had not answered. ठीक है? Next sentence. Where is the boat? Hurry up, we are being chased, she cried. अब ये एक agitative impression है, agitative impression है। Well, she cried in agitation. She cried in agitation where the boat was and asked to hurry up as they were being chased. Repeat kar raha hu. She cried in agitation where the boat was and asked to hurry up as they were being chased. Next sentence. I've lost my way. Can you direct me to the post office, please? Said the old lady. The old lady said that she had lost her way and requested if I could direct her to the post office. The old lady said that she had lost her way and requested if I could direct her to the post office. Next sentence. He said to me, what a pity you missed such an important meeting. मेरे पास sign of exclamation है इस फिक्रे में, so ये ऐसे होगा, he exclaimed with sorrow that I had missed such an important meeting. He exclaimed with sorrow that I had missed such an important meeting. Next, how wonderful, again इसके बाद sign of exclamation है, why didn't you suggest this plan earlier? He exclaimed with surprise. Yeah, with wonder. Both the words are accurate. He exclaimed with wonder. Why? He exclaimed with wonder why I had not suggested that plan earlier.
why I had not suggested that plan earlier. Okay, next. He said, let's wait till the road gets cleared. He said, let's wait till the road gets cleared. He suggested, it's a suggestion, imperative sentence hai. He suggested us to wait. He suggested, us ना भी लगाएं तो आप लिख सकते हैं, he suggested to wait till the road got cleared. He suggested to wait till the road got cleared. ठीक हो गया? अब आप पूछिए जो भी पूछना है. Can we write requested in question number 4? Question number 4. Don't blame him for the accident. नहीं, यहाँ request नहीं. Please होता तो हम requested कर लेते. ठीक है? Passing marks in English Pressy are 40. फरखंदा प्रेस पासिंग मार्क्स इन प्रेसी पेपर आप पूरे पेपर का पूछ रहे हैं तो 40. बिल्कुल ठीक है. उस्मान असलम, Jamie asked if that was your house, wasn't it? Jamie asked if that was, नहीं, asked me है. बेसिकली implicit subject यहाँ me है, your नहीं आएगा. Jamie asked if that was not my house करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. रोकिएगा जी यहाँ पे उस्मान असलम जी. नेक्स्ट, कैन वी राइट टिल द रोड वाज क्लियर? नहीं, बेसिकली हमें बिला वजह छेड़ना नहीं चाहिए सेंटेंस को. गेट है ना, गॉट में चेंज कर दे. सिंपली मरियम इमरान गॉट में चेंज कर दे. अहमद शाह, द जज समन्ड द फर्स्ट विटनेस. जी ऐसे भी आ सकता है लेकिन ना करें तो बेहतर है अहमद शाह, क्योंकि फिक्रा इंपेरेटिव है. आप लगाइए जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. इंपेरेटिव्स में हम टू यूज करते हैं ना, तो फॉलो द रूल्स. व्हाई सर इज स्टिल रोड गॉट? व्हाई सर इज स्टिल रोड गॉट? यस, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. गेट है तो गॉट में चेंज हो जाएगा. टिल द रोड गॉट क्लियर्ड. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट. महक, नेक्स्ट. थोड़ा सा नीचे करना है. अच्छा नहीं, ठीक है. इन सेंटेंस 6, हाउ कैन वी रिमूव हरी अप? नो नीड टू रिमूव इट. व्हाई शुड वी रिमूव? यही तो वो कह रही है. शी क्राइड इन एजिटेशन वेयर द बोट वाज एंड आस्क्ड टू हरी अप. एंड आस्क्ड टू हरी अप एज दे वर बीइंग चेस्ड. हमें जरूरत नहीं है कि हम हरी अप को रिमूव करें. ठीक है जी. लास्ट वन की बात कर रहा हूं महक. सर, इज दिस सेंटेंस राइट? द बॉयज मदर फॉरबिड. यार थोड़ा अलर्ट रहो फहद. नीचे करो थोड़ा. यहां पे रखो, यहां पे रखो, यहां रखना आप जी. द बॉयज मदर फॉरबिड टू ब्लेम हर सन फॉर द एक्सीडेंट. जी ठीक है, ज्यादा ऐसे भी ठीक है. जेमी आस्क्ड मी इफ दैट वाज माय हाउस. जी आ जाएगा. क्वेश्चन मार्क कट कर दीजिए अमीर हमजा, आ जाएगा. द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. देम लगाने की जरूरत ही नहीं है. द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. देम कट कर दीजिए सोबिया. द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. राइट? शी एक्सक्लेम्ड विद फियर दैट वेयर द बोट वाज एज दे वर बीइंग चेस्ड. आ सकता है ऐसे भी, लेकिन हसन इस फिक्रे में मेरे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है. अगर आपके पास है तो आपका फिक्रा ठीक है. तलहा, द बॉयज मदर आस्क्ड टू नॉट ब्लेम. नहीं, टू को बाद में लगा लें. नॉट टू ब्लेम लगा लें तलहा. नॉट टू ब्लेम हिम फॉर द एक्सीडेंट. इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज करेक्ट. टू को नॉट के बाद ले जाएं तलहा. जवाद, द बॉयज मदर टोल्ड नॉट टू ब्लेम हर सन फॉर एक्सीडेंट. टोल्ड ना यहां लगाएं, आस्क्ड लगाइए. जवाद, द बॉयज मदर आस्क्ड नॉट टू ब्लेम. टू को नॉट के बाद ले जाएं. जवाद, मुस्तफा. Jamie asked me if that was my house or not. दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती. or not सिंगुलर में करें आप, या नॉट लगा के कर लें या विदाउट नॉट कर लें. Jamie asked if that was not my house. if that was not my house, it ने चेंज होना है मुस्तफा that में. if that was not my house और that was my house, एक कर लें दोनों में से. ठीक है. नेक्स्ट, ऊपर ले जाएं जी. फाहद मियां, अहमद शाह पर ले जाओ.
और ऊपर ले जाओ, यहां रोको, रोक दो. The boy's mother asked not to blame him for the accident. Not to blame her son करें यहां पे, her son करें, her son से clarity आएगी. अच्छा, she cryingly inquired where the boat was and asked to hurry up as they were being chased. बिल्कुल ठीक है, दुआ ईमान ऐसे भी आ सकता है. Our confusion how to change if the sentence is already in indirect present indefinite. If it is already in indirect present indefinite, तो ये present indefinite में ही रहेगा. ठीक है, जब आप indirect को change करेंगे फिर तो इसका tense change नहीं होगा, आमना, फिर tense नहीं change होगा. गिना इरफान, the boy's mother asked, not के बाद लगाइएगा ना to, not to blame her son for the accident. To को not के बाद use करें. Amir, can 7 be the old lady said that she had lost her way and asked whether I could direct her to the post office. आ सकता है. Question mark खत्म कीजिए अमीर. चूंकि please आया हुआ है ना, इसलिए हम requested का word use करते हैं अमीर. Better is to make use of the word requested. Next, आगा. The judge directed the court officer to call the first witness. यार जरूरत क्या है हम court officer बिला वजह, जज है ऑर्डर कर रहा है, जाहिर है वो अर्दली कोई करेगा ना. जज ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट विटनेस. अब ये उनकी हेडेक है, कौन कॉल करता है, हमें क्या जरूरत है बताने की. आगा साहब, she asked where the boat was and cried that they had to hurry as they were being chased. आ जाएगा ऐसे. आगा साहब दूसरा फिक्रा आ जाएगा. अमीर हमजा, sir, can 5B? He said that he banged on Cliff's door but he didn't answer. No, not at all, not at all, not at all. ये तो आपको ऑलरेडी उसी तरह रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आई आपकी. ठीक है. Emisha, we don't have exclamation mark in it. Is this correct then? He pitied that I had missed such an important meeting. Yes, it is correct. If you don't have exclamation mark, Emisha, your sentence is correct in that case. The boy's mother begged them not to blame him for the accident. Basically, begged का word या impression नहीं है यहाँ पे begged का, क्योंकि वो तो एक किस्म की warning दे रही है. तो begged doesn't seem to be positive. Forbade ही use कर ले आगा सब. Next, the taxi driver asked where did I want to be dropped. नहीं, where did नहीं आएगा, where I wanted to be dropped. Where did I want तो फिर question statement बन जाएगी वो. ठीक है, where I wanted to be dropped. Did लगा दें past indefinite tense में जवाब, तो वो फिक्रा हमारा question sense बन जाता है. हम did question में या negative में use करते हैं, वैसे नहीं. जी. Next, the old lady requested that she had lost her way and if I could direct. ठीक है, हसन ऐसे भी ठीक है. हमेशा can we use its name with joy in place of its name with surprise? You can basically वहां impression surprise का ही है, लेकिन आप कर सकते हैं जी. could ही रहेगा. सायरा दिलावर, कंडीशनल वर्ड जो होते हैं should ही रहता है, could ही रहता है, might might में चेंज हो जाता है. ठीक है. can होगा तो could में चला जाएगा, लेकिन could होगा तो नहीं चेंज होगा. इसी तरह may होगा तो might में चला जाएगा, might होगा तो फर्दर नहीं चेंज होगा. ठीक है, ये इसका तरीका होता है. He suggested us to wait until the road got cleared. Or should we use the exact words of sentence till? Till ही यूज करें आप. हमेशा gets नहीं आना, got cleared past tense में कन्वर्ट हो जाएगा. The old lady said that she had lost her way and asked me लगाने की जरूरत नहीं है. If I could direct her to the post office, पहला me कट कर दे. आगा साहब फिक्रा ठीक है आपका. She cried in hurry that where the boat was they were being chased. No, वरना she cried in agitation where the boat was and asked us to hurry up as they were being chased. तब ये फिक्रा कंप्लीट होगा ना जी. The old lady said that she had lost her way and wanted to be directed to the post office. आ जाएगा. आ सकता है तलहा. शाबाश, कोई आप लोगों की गलत नहीं है इतने. जरा फीडबैक की तरफ आइए. Please be honest in giving me the feedback. How many are correct out of 10? Nayab 3, Dua 10 by 10, compliment. Sara 7, Shajia 7, Emisha 7. जी बैड सीन है. आगा फरहान, नहीं यार आगा साहब आपके फिक्रे ठीक हैं, ऐसे ना कहें.
इकरा ज़ैनब 10, जायदा 9, अनम 9, अमीर 5, उस्मान 8, मानूट 6, सबा खान 9, गुड, मरियम अवान 6। थोड़ी सी अभी आपको कंफ्यूजन है इसमें। आगा फरहान अली फजलबाश 4, right, almost all correct with minor mistakes. No problem, Daud. They are going to be very fine in that case. Minor mistakes की खैर है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब है आप। आपको एक पेपर और ना दे दूं, बोर तो नहीं हो गए आप? दे दूं? She inquired where the boat was. नहीं, अहमद शाह इंक्वायर नहीं आ सकता, पास्ट टेंस है। इंक्वायर्ड, बाकी फिक्रा ठीक है, इंक्वायर्ड लगा लें। How wonderful! Why didn't you suggest this plan earlier? का बता दीजिएगा जी। She exclaimed with wonder. She exclaimed with wonder आपने लगाना है, ठीक है? Here, he exclaimed with wonder. Why I had not suggested that plan earlier. Why I had not suggested that plan earlier. Sarah Blower, got the idea? Well, एक और दे रहा हूं जी, पेपर 2005 ले लें। पेपर 2005, got the idea? For direct and indirect. इंशाल्लाह इसमें आपकी कंफ्यूजन्स काफी हद तक दूर हो जाएंगी, आप राइट लाइन पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर एनकरेजमेंट। मुझे लगता था कि शायद आप बोर ना हो जाएं इस एक्सरसाइज से। ठीक है, ओके, आगे चल रहे हैं। हम शुरू किया हुआ था हमने एक एक्सरसाइज दैट वाज ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, थोड़ी सी हमने ये और करनी है और उसके बाद हमने आगे चलना है। हमारी कुछ और एक्सरसाइजेस भी हैं, एक आध और कंटेंट भी है हमारा आज। पहले हम इसको टेकअप करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स को। द डे बिफोर यस्टरडे हमने 2 एक्सरसाइजेस की थी। अब मैं एंटोनिम्स की एक एक्सरसाइज करने लगा हूं। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स जी। नंबर 1, डिलेटेरियस। इसको डिलेटेरियस भी पढ़ते हैं, ठीक है। वैलेडिक्टरी, वैलेडिक्टरी। Number 3, sedentary. Number 4, sorry, T-A-R-Y, sedentary. T-A-R-Y, sedentary. And number 4, it is turbid. And number 5 is phlegmatic. Phlegmatic. मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं 5 words: deleterious, valedictory, sedentary, turbid, and phlegmatic. Got the idea? Well, opposite side पे मैं वर्ड्स दे रहा हूं, डिस्टॉर्ट करके इनके मीनिंग दे रहा हूं। वेल, एक्टिव, एक्टिव, होपफुल जी। उसके बाद नरिशिंग, and then we have clear. Active, active, hopeful, nourishing and clear. ठीक है, ये वर्ड्स आपने करने हैं। तो you have 2 minutes to pair for them. 2 मिनट में आप इनकी पेयरिंग करेंगे। जी है ना। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको 20 वर्ड्स दिए जाते हैं और आपने 10 पेयर्स बनाने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होती हैं,
या आपने सिनोनिम्स बनाने होते हैं या आपने एंटोनिम्स बनाने होते हैं। ठीक है, आपकी इसके लिए स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होनी चाहिए और आपको वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज आपको बहुत फैसिलिटेट करता है। क्या ये वर्ड जो दिया हुआ है ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इस चीज से काफी पता लग जाता है। और उसके बाद आपकी कॉमन सेंस इसमें मैटर करती है। गॉट द आइडिया? जी कीजिए। डू इट, हरी अप, हरी अप। यार ये लेना जरा दो स्टूडेंट्स को, सायरा दिलावर को लेना पहले। सायरा दिलावर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि पिछले सेंटेंस में मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है कि जिसमें वो जेमी आस्क या टैक्सी ड्राइवर के बारे में कि आस्क लगाना है, आपने सेट का डेट लगाना है, वेदर लगाना है, ये। बट सर मुझे ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि हाउ वंडर के बाद जब व्हाई डिडंट यूज दिस प्लान आएगा तो इसमें आई कैसे आएगा, क्योंकि पिछले में तो हम ये देखते हैं ना कि सब्जेक्ट जो मतलब कि जो स्टार्ट का पॉइंट होता है उसमें जो ही लगा होता है उसको हम नेक्स्ट वाले के साथ चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि हाउ हम वाई के साथ कैसे चेंज करेंगे। मतलब कि तो यहाँ आपने आई लगाया, व्हाई डिड यू जस्ट कैसे आएगा? जी सायरा मैं हाउ गाइड वंडर। कर सायरा मैं गाइड कर रहा हूँ, पहले आपको सुन लीजिए। बेसिकली जहां हमारा ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, मसलन ही सेड टू मी की बजाय ही सेड ही दिया हुआ है, तो 95% केसेस में वहां हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं कहूं ही सेड यू आर नेवर ऑन टाइम। अब इसका मतलब है कि यहां मेरा इम्प्लिसिट जो सब्जेक्ट है, जो मख्फी है, मैंने मेंशन नहीं किया, वो आई ही है। ही सेड टू मी यू आर नेवर ऑन टाइम। ही सेड टू मी दैट आई was never on time. Got the idea? लेकिन अगर आप चाहें तो आप वहां कोई भी इम्प्लिसिट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसे कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल सर। सेकंड में बात करते हैं। एग्जाम्पल। फर्स्ट थर्ड दोनों प्रोनाउंस आप यूज कर सकते हैं। जी सायरा, नेक्स्ट। क्लियर है? और सर इसके अलावा ये बात मुझे क्लियर है। जी सायरा। जी सर क्लियर है। जी सर नेक्स्ट, मेरी आप आवाज आपको आगे पूछे। जी आ रही है, आप जी आगे सर। पूछे। जी सर मैं इसको प्रैक्टिस के बाद में आपसे कल क्वेश्चन करूंगी इसका। जी बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आगा फरहान अली साहब को लीजिएगा जी। थैंक यू सायरा जी। आगा फरहान को लीजिए। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब आप ठीक हैं? अलैक्म सर, आप खैरियत से हैं? आगा साहब माइक पास आवाज मेरी आ रही करिए। होगी सर? जी मेरी आ रही, आवाज आ रही थोड़ा है सा सर माइक पास। क्लियर? हाँ जी आ रही, आ रही, आ रही, बोलिए। सर मुझे काइंडली बताएं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन और डायरेक्टेड एंड जो दूसरा वाला था ऑर्डर। ऑर्डर एंड डायरेक्टेड के अंदर डिफरेंस क्या है सर? बेटा ऑर्डर जो होता है वो तो डायरेक्ट एक कमांड है ना। He said to the PN, get out of my office. This is an order. ठीक है? The teacher asked me to put a hand on the mouth while yawning. कि जमाई लेते वक्त मुंह पे हाथ रखें। This is what? Direction. कि टीचर ने इशारा किया। ठीक है? बोल के कहना टीचर का मुनासिब नहीं है, सब लोग मुतवज्जो होते हैं। राइट? डायरेक्शन होती है जहां आप डायरेक्ट करते हैं, कोई हिदायत देते हैं या कोई इशारा करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्टेड यूज करते हैं। द टीचर डायरेक्टेड मी टू कम टू द बोर्ड एंड सॉल्व द सम। कि उसने मुझे हिदायत की कि इधर आ जाए। डायरेक्ट का मतलब इशारा भी होता है। माई मदर डायरेक्टेड मी टू कीप क्वाइट। मेरी माँ ने इशारा किया मुझे कि तुम खामोश रहो। ठीक है? सो
फिक्रे की इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी सेंस हमें अक्सर औकात खुद डिटरमिन करनी होती है, लेकिन आगा साहब अगर हमें ये काफी फायदेमंद हो जाता है। क्लियर? राइट सर। और सर आपने कहा था कि बैग्ड नहीं आएगा वो लेडी वाले उस जो वुमन वाले में था कि जी दी जी जी वुमन सेड जी क्योंकि जी सर जी अगर मैंने तो ये इन्फर किया था कि अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं और मतलब कोई आपके बिहाफ के ऊपर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बैग नहीं आ जाएगा एसेंशियली। नहीं नहीं नहीं, बेग्ड आता है जहां रिक्वेस्टेड या प्लीज्ड का वर्ड आता है। ठीक है, ये तो एक किस्म की पाउंसिंग एक्टिविटी है, खबरदार मेरे बेटे को ब्लेम करने की कोशिश की तो, ये बेगिंग नहीं है। बेगिंग होगी ओके। आगे वर्ड आएगा। गॉट द आइडिया? शाबाश। आते हैं जी तो वापस आप अपने कह रहे हैं कि बेगिंग, सॉरी सर मैं जरा आप कंफर्म कर लूं, बेगिंग के अंदर आप वर्ड प्लीज यूज होता है और दूसरा वर्ड क्या होता है सर? रिक्वेस्टेड या प्लीज्ड। ठीक है, अच्छा सर ये दैट वुड मेक इट क्लियर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू दैट्स फाइन। थैंक यू शाबाश, थैंक यू आगा थैंक साहब। यू। जी करें इस एक्सरसाइज को। अब देखिए इसको नॉन टू अननोन करना है। आप एवरीडे साइंस के स्टूडेंट भी हैं। टर्बेड एक हमारा इजी वर्ड है और उसके बाद हमारे पास डिलीटरियस इजी वर्ड है। सिर्फ इस लिस्ट में यही दो इजी वर्ड्स हैं। हम इधर से ट्रेवल करेंगे। टर्बेड का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर? सलाइम वाटर को कहते हैं टर्बेड। गॉट द आइडिया? एडीएस पढ़ते हैं आप। डिलीटरियस जो होता है, डिलीटरियस का मतलब होता है नॉरिशिंग। दो हो गए। अब देखिए, अब हमारे पास वर्ड है तीन। वैलेडिक्टरी है, सिडेंट्री है, एंड फ्लेगमेटिक है। इनमें से दो वर्ड्स का मतलब तो है एक्टिव। ठीक है, इसका मतलब अगर हम तीसरा गेस करने में कामयाब हो जाएं तो बाकी दो का मतलब हमें आता हो या ना आता हो, हम बाढ़ में जाए ये चीज हम उनको पेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब एक्टिव नहीं है। जी सेडेंट्री का मतलब सायरा एक्टिव ही होता है। वेरी राइट। एक मतलब एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब एक्टिव नहीं है और वो है वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी का मतलब होता है होपफुल। होपफुल लीगल टर्म भी है ये। अगर ये पता चल जाए तो बाकी दोनों हमारे क्लियर हैं। ठीक है, सिडेंट्री का मतलब भी एक्टिव एंड फ्लेगमेटिक का मतलब भी एक्टिव। सिडेंट्री, इसमें स्लाइट एक डिफरेंस होता है। सिडेंट्री कहते हैं इनएक्टिव को, लेथार्जिक, सुस्त। ठीक है, लिहाजा इसका एंटोनिम क्या है? एक्टिव। फ्लेगमेटिक कहते हैं कूल, काम, पैसिव। सुस्त नहीं, कूल, काम, उसका भी एक्टिव होता है। ठीक है जी, पता नहीं चलेगा। महक, ये आपकी वही गैसिंग स्पिरिट है, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। या तो आपको इनमें से इन दो का मतलब आता हो कि दोनों का एक्टिव है तो तीसरा आसानी से हो जाएगा, वरना ये गलत होगा। क्योंकि इनमें से ये चांस है कि आपका एक गलत हो जाए, दो फिर भी ठीक हो जाएंगे। दो को, किसी दो को भी एक्टिव के साथ पेयर कर दे, किसी दो को भी एक्टिव के साथ पेयर करेंगे तो एक तो जरूर पेयर हो जाएगा ना महक, एक हर सूरत में पेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वैलिडिक्टरी का मतलब होपफुल था, आपको नहीं पता चला, आपने इसको एक्टिव के साथ पेयर कर दिया। सिडेंट्री को भी एक्टिव के साथ पेयर कर दिया। सो इसका मतलब एक गलत हुआ ना, एक तो ठीक हो गया। ठीक है जी, जीआरई वर्ड लिस्ट से आइडिया हो जाता है सायरा। वेरी राइट, वेरी राइट, दैट्स वेरी फाइन। एक सिनोनिम्स की एक्सरसाइज ले रहा हूं फिर, और करना है। एनाथमा, एनाथमा, टॉर्पर, touchstone, sequester, and denouement. Denouement और वर्ड है, मैं पढ़ने लगा हूं। anathema, anathema, torpor,
touchstone, sequester and denouement. अब मैं jeopardize करके इनके मतलब लिखने लगा हूं. Isolator, well, ending slash termination, well, lethargy. Next is curse, and next is criterion. दोबारा पढ़ रहा हूं. Isolator, ending or termination, lethargy, curse and criterion. You have 1.5 minutes. जल्दी से पेयरिंग कीजिए इसकी. शाबाश. हरी आप जल्दी जल्दी पेयरिंग कर दें इसकी. Try it. शाबाश. From known to the unknown. इसमें ये नॉन है, ये नॉन है, ये नॉन है. 3 वर्ड्स हमारे काफी कॉमन हैं. इधर से आप आगाज करें जो मैंने टिक किए हैं. टॉपर, टचस्टोन एंड सीक्वेस्टर. इधर से आगाज करें. हरी अप. शाबाश. जी स्टार्ट करें. Should I start it with Sairad Lavar? That's very fine score. जी देखिए जी, touchstone, very simple words. You people use it quite often. इसका मतलब होता है criterion, yardstick जिसे आप कहते हैं. ठीक है. Topper, topper, topper का मतलब होता है, ये वो वर्ड है जिनके हमें पंजाबी में बखे उधेड़े हुए हैं, टांगे तोड़ी हुई है कि यार आज जिस्म की बड़ी तोड़ फोड़ हो रही है. ये वो वाला तोड़ फोड़ है, टॉपर, जिसे हमने तोड़ फोड़ बना दिया है. हम अंग्रेजों की लैंग्वेज के सत्यानाश करते हैं ना, जैसे फैटीग होता है. फैटीग एक वर्ड है इंग्लिश का. हम कहते हैं यार आज फटीक पई है, कुछ करन नूं दिल नहीं करदा. तो इस तरह के वर्ड भी यूज होते हैं. टॉपर मींस देन लेथार्जी, सुस्ती. अब सीक्वेस्टर फॉर एग्जांपल, आपको इसका मतलब नहीं भी आता तो ये कॉमन सेंस गाइड कर रही है. TER लगा हुआ है. सीक्वेस्टर इज आइसोलेटर. क्लियर. अब रह गए हमारे पास 2 वर्ड. दोनों बड़े डिफिकल्ट हो गए क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं हमारे नाउन्स हैं. ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है अनैथमा, ये ग्रीक वर्ड है. डिनाउमेंट प्योरली एक लिटरेरी वर्ड है, लेकिन ये दोनों नाउन है. अब फॉर एग्जांपल आपको दोनों का मतलब नहीं आता. अब यहां आपकी कॉमन सेंस और आपका नॉलेज अप्लाई नहीं होगा, यहां आपकी इंट्यूशन अप्लाई होगी. कॉमन सेंस कह ले, इंट्यूशन या कॉमन सेंस अप्लाई होगी. आपको ये देखना है कि क्या एनाथमा का मतलब एंडिंग हो सकता है टर्मिनेशन, या डिनाउमेंट का मतलब एंडिंग और टर्मिंग हो सकता है. क्या एनाथमा कर्स हो सकती है या डिनाउमेंट कर्स हो सकती है? आपका दिल क्या कहता है? First is curse. Exactly, all right. That's very fine. Anathema का मतलब होता है कर्स, और डिनाउमेंट ड्रामे की इस्तिलाह में, लिटरेचर में, किसी भी ड्रामे की एंडिंग को कहा जाता है डिनाउमेंट.
Got the idea? So agar Farhan sahab fine 5 out of 5 finally, that's very fine, that's very fine. So it is ending denouement. ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज थी, लास्ट एक और एंड देन वी आर गोइंग टू से गुड बाय टू दिस एक्सरसाइज एज वेल. जी ये मैंने 8 वर्ड्स इधर लिखे हैं, ये भी सिनोनिम्स है. अपोजिट लिस्ट में मैं वर्ड्स देने लगा हूं. वेल बाद में सारे पढ़ता हूं. जी ये मैंने वर्ड्स दिए हैं, मैं बोलने लगा हूं. मानूर अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो सुन भी लीजिए, मैं आपको गाइड करता हूं. लेफ्ट साइड जो है उसको पहले पढ़ने लगा हूं. फर्स्ट वर्ड इज मॉरेटोरियम. मॉरेटोरियम इंग्लिश का वर्ड नहीं है, मॉरेटोरियम. सेकंड इज प्रोलिफिक. प्रोलिफिक. थर्ड इज बायपार्टिसन. बायपार्टिसन. ठीक है, बायपार्टिसन. सॉरी एक में 2 दफा लिख गया हूं. सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. एक सेकंड. First word is moratorium, second is prolific, third is bipartisan, fourth one is unequivocal, fifth one is covenant. Covenant. Sixth one is demographic. Demographic. Seventh is sonar. इसको sonar भी पढ़ते हैं. Seventh is tentative. Tentative. Opposite list. First word is agreement. Second is provisional. Third is waiting period. Fourth is unmistakable. Fifth one is representing 2 parties. Sixth one is instrument that locates objects underwater. Instrument that locates objects underwater. Seventh one is versatile. And last one is related to population. Related to population. हमें known to the unknown चलना है. Prolific, bipartisan, covenant, demographic and sonar and tentative. ये यकीन कीजिए सारे बड़े common words हैं. You must take 2 minutes pairing कीजिए 2 मिनट के अंदर इसकी. Just in 2 minutes. शाबाश शाबाश everybody. Do it शाबाश. Mute.
planet. Yes के ना, sometimes some of the words are difficult basically. कर दिया? Sometimes के ना, some of the words are difficult. It happens. ये comparatively easy है. Start करें इसको. जी, prolific का मतलब होता है versatile. Easy word है. Bipartisan. अब by का word लगा हुआ है, prefix है. By का मतलब होता है two. इसका मतलब representing two parties. Got the idea? Bipartisan. Unequivocal. अब आपको आता है या नहीं? प्रीफिक्स लगा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अनइक्विवोकल. कॉमन्स बताएगी कि इधर भी हमारा प्रीफिक्स लगा हुआ है. अनइक्विवोकल मींस अनमिस्टेकेबल. आमने सामने पेयर हो गया. ठीक है. वेल, कवेनेंट लीगल टर्म है, इसको छोड़ देते हैं अभी. हो सकता है आपको ना आता हो. डेमोग्राफिक, ईडीएस के स्टूडेंट्स हैं. डेमोग्राफिक मींस रिलेटेड टू पॉपुलेशन. सोनर, ये भी आप ईडीएस के स्टूडेंट हैं. सोनार या सोनर कहते हैं इंस्ट्रूमेंट दैट लोकेट्स ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर. टेंटेटिव, वेरी कॉमन. टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोविजनल. ठीक है. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वर्ड्स रह गए. अब देखिए, एक है अनइक्विवोकल, सॉरी, एक है कवेनेंट, एक है मॉरेटोरियम. कवेनेंट एंड मॉरेटोरियम. अब इत्तेफाक से ये दोनों नाउन है. पेपर में आप करेंगे तो या दोनों गलत होंगे या दोनों सही हो जाएंगे. यहां कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी. मॉरेटोरियम का मतलब वेटिंग पीरियड हो सकता है या कवेनेंट का मतलब वेटिंग पीरियड हो सकता है. इसी तरह कवेनेंट एग्रीमेंट हो सकता है या मॉरेटोरियम एग्रीमेंट हो सकता है. क्या हो सकता है? तो कॉमन सेंस नहीं मानती कि कवेनेंट का मतलब वेटिंग पीरियड हो सकता है. नॉट एट ऑल. ठीक है. सो मॉरेटोरियम मींस वेटिंग पीरियड एंड कवेनेंट इज अ लीगल टर्म यूज्ड इन लॉ. इसका मतलब होता है एग्रीमेंट. जरा इसका फीडबैक तो दीजिए, ऑनेस्ट फीडबैक. बाबर, वेल डन. आगा फरहान, वेल डन. नायाब 7, फरखंदा 5, 8, 5, 8 by 8. सारा सुलेमान, वेल डन. शजिया नकवी 4. शजिया 4 कम है इस एक्सरसाइज में, इसमें नहीं आने चाहिए थे. मानूर 5, दाऊद 6, मोहम्मद अहमद 8, वेल डन. अहमद शफ 5, हाफसा 7, वेल डन. शाबाश शाबाश. 4 बहुत कम है, 4 नहीं आने चाहिए थे. ये वाले तो बहुत इजी वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं आता था इक्विवोकल, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अप्लाई होता है. दोनों प्रेफिक्सेस हैं, आप यूज करें. अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपको कॉवेनेंट आता होता, एग्रीमेंट, और इन दो में टाइप पड़ती, मैं एक चीज समझाने लगा हूं, अनइक्विवोकल और मॉरेटोरियम में टाइप पड़ती, तो फिर आप इसे आसानी से कर सकते थे. मॉरेटोरियम नाउन है, अनइक्विवोकल एडजेक्टिव है. तो नाउन को नाउन के साथ पेयर करना था, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ पेयर करना था. ठीक हो गया. ऐसी सूरत हाल में कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट हो, कि एक नाउन है एक एडजेक्टिव है, हमें मतलब आता हो या ना आता हो, हम उसे आसानी से कर सकते हैं. जी फरखंदा, दैट्स वेरी फाइन. 6 out of 8. करें जी इसको. जाहिदा आपके भी कम है बेटा, साफ कर दे. आ रहे हैं अपने एक नए कंपोनेंट के साथ, and that is phrasal verbs. We are about to do phrasal verbs now. Got the idea? हमारा एक नया कंपोनेंट है phrasal verbs. साफ करना चाहिए. So parts of speech करवाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी. पार्ट ऑफ स्पीच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. मैं आपको 1 या 2 दिन में इसके नोट सेंड करवा रहा हूं. ये हो रहे हैं, कंपोज हो रहे हैं. आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वो सेल्फ रीडेबल होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीन. आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी. 3-4 पेजेस होंगे, सिर्फ आपने उनको पढ़ना है. आगा साहब, परसों आपको ये सेंड हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है जी. खटक ये इसी का हिस्सा है, हमारे प्रेसिएंट कंपोजिशन के पार्ट का हिस्सा है, ग्रामर का हिस्सा है. यार ये खटक को 1 सेकंड जरा लेना ऑडियो पे.
लेना, अनम्यूट करना। जी खट्टक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? एवन, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुझे थोड़ा सा आपके नाम के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने इसलिए आपको ऑडियो पे लिया है। आपका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है नाम का? पुगमय। दोबारा बोलिए। पुगमय। स्पॉगमाई या पॉगमाई? जी सर। एस इज साइलेंट और एस पुगमय। इज पॉगमाई। पॉगमाई, एस इज नॉट साइलेंट ओके ओके, सर, पॉगमाई। एस साइलेंट। आपकी आवाज कट रही है। पॉगमाई खटक, ठीक है? तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पॉगमाई? सर ये पश्तो का लिटरेचर का वर्ड है। इट मींस मून, मून, चांद। मून, चांद। हेलो। राइट राइट राइट, जी सर। यस, इसका मतलब है मून, चांद। दैट्स वेरी यूनिक नेम, पॉगमाई खटक। इट्स बेसिकली अ पश्तो ओरिजिन नेम। Yeah, it's used in Pashto literature. Very well, that's very fine. Thank you very much. Thank you for your cooperation. म्यूट कर दीजिए जी। खटक, पॉगमाई, ये हमारा जो फ्रेजल वर्ब्स है, ये प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर का थर्ड कंपोनेंट है, हमारा ग्रामर उसका हिस्सा है, ठीक है? फ्रेजल वर्ब्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2015 में रिफॉर्म्स आई थी। वो जो रिफॉर्म्स थी उसमें ये कहा गया कि जी इडियम्स जो हैं दे आर नॉट बीइंग यूज्ड राइट नाउ, दे आर ऑब्सोलेट बिकॉज इन official language and in colloquial language nobody is going to make use of the idioms, so they decided to replace the idioms with phrasal verbs because no doubt they are being used in official language, both in colloquial language as well. But basically what happened, हुआ ये कि कमीशन ने बजाय ये कि idioms खत्म करके जो उन्होंने कमिटमेंट की थी ये देंगे, उन्होंने ना idioms खत्म किए और एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी ऐड कर दिया। So from 2015 onwards, we do have both phrasal verbs as well as idioms in the paper. What's the difference between the two? Phrasal verbs are always verbs followed by prepositions. Phrasal verbs are always verbs followed by prepositions and in rare cases followed by adverbs. लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि 99.5% केसेस में इनके बाद preposition आती है। इनका दुनिया में सीखने का कोई तरीका नहीं है, इसको हमें रट्टा लगाना पड़ता है। We need to cram out the phrasal verbs because we are bound to use them the way the native speakers use them, the English speakers use them, because just change the preposition and the meaning is undergoing a kind of considerable change. We have no other method, ठीक है? हमें इसको रट्टा लगाना है। हमारे पास एक दो डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि निहारमू रट्टा लगाएंगे या रात को सोने से पहले, या दोनों डोजेस ठीक रहेंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, जैसे मैं कहता हूं ब्रेक। अब ब्रेक इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग, ठीक है? अब मैं कहता हूं ब्रेक इनटू, meaning will undergo a kind of change. अब आप मुझसे पूछें कि why not break in, why break into? I have no answer because the native speaker is going to use it in the same way. अगर मैं break in कहूंगा तो उसका मतलब change हो जाएगा। break down, break through, break out, for example, break up. Verb will remain the same, change the preposition, and the meaning is going to undergo a kind of change. ठीक है? So verbs followed by prepositions, यानी verbs के बाद preposition आती है। For example, break into का मतलब होता है act of stealth, theft, burglary जिसे आप कहते हैं, burglary, ठीक है? नकब लगाना,
चोरी की नीयत से किचन ग्रिल या किसी की दीवार तोड़ के अंदर दाखिल होना। ब्रेक इन मीन्स टू डिसीव, टू डिसीव। ऐसी मिसाल दे रहा हूं आपको। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन, गाड़ी वगैरह का, किसी गैजेट का खराब हो जाना। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोशिश के बाद, आफ्टर स्ट्रेनियस एफर्ट, when you get some kind of success, that means breakthrough. Breakout means किसी वबा वगैरह का फूट जाना, ठीक है, किसी पेंडेमिक एपिडेमिक का फूट जाना। Breakup means to disconnect relations with somebody. Got the idea? किसी से अपना ताल्लुक तोड़ लेना। मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये वो वाला ब्रेकअप, राइट? सो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों नहीं। They do have their own places. जैसे मैं कहता हूं put up with, put down, put off, put on. For example, verb remains the same, change the preposition and meaning is going to undergo a kind of change. Put up means to file a case somewhere in some office. Put up with means to bear the insult. Put down means to gun down or to cripple somebody's force. अब देखिए put off के तीन मतलब होते हैं। To change the dress, to switch off the light and to postpone the meeting. ठीक है? To postpone the meeting. Well, put on, for example, to change the clothes, to switch on the lights. अब पेपर में आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं। अगर पुट ऑफ आता है तो आपको बिलफर्ज तीनों में से कोई सा भी मतलब आता है, आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे आप बना दें कि जी well, I'm not feeling well, please put off today's meeting. ठीक है, ठीक तसव्वुर होगा। Put off आप कह सकते हैं, hey man, I can't sleep in life, put off in light, put off the lights please. ठीक है, put off ये भी हो सकता है कि please put off your uniform and wear the casual dress. So जब हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो इनको आप किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशंस आती हैं, इनकी कोई रीजन नहीं होती। जिस तरह नेटिव स्पीकर ने यूज किया, हमें भी ऐसे ही यूज करना पड़ता है। इन्हें क्रैम आउट करना पड़ता है। फॉग में हमें क्रैम आउट करना पड़ता है। इनको समझ इसीलिए नहीं आ रही कि हमें इनको क्रैम आउट करना पड़ता है। कल से इसका आगाज करेंगे। आज मैं अभी पढ़ा नहीं रहा आपको, आज अभी मैंने समझाया है आपको। ठीक हो गया? कल मैं मजीद एलैबोरेट करूंगा इंशाल्लाह। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए काफी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह मियां आपका हामी और नासिर हो। मैं कल मजीद खटक क्लियर करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यस, टास्क हैज बीन गिवन। एक उर्दू का पैसेज है और एक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पेपर दिया गया है। ठीक है, नॉट इन ऑल द केसेस उसामा। यहां वो prepositions को अंडरस्टैंड करने वाला सिलसिला है ही नहीं। ये फ्रेजल वर्ब्स है। ठीक है, इसमें वैसे ही यूज होते हैं जैसे ये यूज होते हैं। नहीं, सिनोनिम्स की कोई एक्सरसाइज नहीं, यही करनी थी हमने। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हियर इज 2005 तला शाहिद 2005। थैंक यू वेरी मच माय डियर जी। मैंने इसीलिए पढ़ के बताया था आपको। कोई रीराइट करके पेस्ट कर दिया फरहान साहब के लिए उर्दू का पैसेज। पहली लाइन जरा डिस्टर्बिंग है, वो आप पेस्ट कर दीजिए। कोई शख्स पहली लाइन पेस्ट कर दे प्लीज। आगा साहब को क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई पहली लाइन इसकी पेस्ट कर दे। 1% verbs are followed by adverbs. जैसे मैं कहता हूं run fast. Fast is not a preposition, it's an adverb. He ran fast and reached his destination. ठीक है, बाकी 99% prepositions follow. Thank you very much. Allah bless you.